क्वेश्चन नंबर 10 इन रियल लाइफ कैसे किया जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, आई राइट। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date after considering the additional information given below. They have given you stock, capital, purchases, wages, carriage inward, sundry creditors, bills payable, cash in hand, insurance, debtors, OD, credit balance in cash book is overdraft. Then carriage outward sale करने के लिए, land and building, furniture, sales, sales return, purchase return, purchase return and sales return, rent, bad debts, RDD, discount, traveling expenses and advertisement. This is a trial balance. This is a tallied trial balance. So there is no suspense account. The trial balance is already tallied. Then closing stock is 48,700. Outstanding expenses, wages rupees 700 and traveling expenses 200. Depreciate land and building by 10% and furniture by 5%. Insurance paid in advance rupees 300. Goods of rupees 3,000 destroyed by fire and insurance company rejected the claim fully. ठीक है, so rejected the claim fully, so entire is loss. ठीक है, लिख लेना everyone. चलो करें स्टार्ट. Yes. We can start now. Everyone. Yes. लिख लेना in real life. लिख लेना in real life first we need to pass adjustment entries. And prepare revised trial balance. This is step 1. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज दी है क्वेश्चन में, जो भी आपके एंट्रीज है, कौन कौन से एंट्रीज है, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है, इनको हम एंट्रीज करेंगे, इनकी डबल एंट्री करेंगे, प्लस माइनस नहीं, एंट्रीज करेंगे. एंड वो करने के बाद क्या हो जाएगा, योर ट्रायल बैलेंस विल चेंज. तो हम एक रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2. स्टेप 2, purchase returns, sales return and drawings, if any,
are closed by transferring their balances to purchase account, sales account, and capital account respectively. ये अकाउंट्स हम माइनस करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, परचेस रिटर्न परचेस से, सेल्स रिटर्न सेल्स से, ड्रॉइंग्स कैपिटल से. एक्चुअल रियल लाइफ में प्लस माइनस नहीं होता है, रियल लाइफ में डेबिट एंड क्रेडिट होता है, एंट्रीज होती है, एंट्रीज. सो वी विल पास द एंट्री. थर्ड, closing stock of previous year, that is opening stock, that is opening stock is closed by transferring the balance to trading account. Then step 4, transfer direct expenses and sales balances to trading account. ठीक है. Obviously these balances are revised because हमने ट्रायल बैलेंस पहले रिवाइज किया है. Then step 5, transfer trading account balance to P&L account. P&L क्लोज करना है. Then step 6, step 6, step 6, transfer indirect expenses and other incomes to P&L and pass adjustment entries like provisions, reversal of provisions, RDD PDD इनके, बिकॉज प्रोविजन हम P&L के थ्रू करते हैं ना, प्रोविजन हम P&L के थ्रू करते हैं, इसलिए. आगे स्टेप 7, step 7, transfer balance in P&L to capital. And step 8, prepare balance sheet. प्रिपेयर बैलेंस शीट. अब हम ट्राई करते हैं एक बार, एवरीवन
आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। बट जिसको आप प्लस माइनस कर रहे हो ना, उसको प्लस माइनस के एंगल से नहीं देखना, एंट्री के एंगल से देखना, ठीक है। यस। एवरीवन। जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर लिखो। दिस इज एट द एंड ऑफ द ईयर, 31st March 19। डेट फर्स्ट देखते हैं। देयर आर परचेस रिटर्न्स ऑफ ₹500। there is a sales return of 400. Now what we will do, we will close purchase returns against the purchases. So purchase returns has a credit balance of 500, वो चला जाएगा, and we will deduct it from purchases, which is which is 22,500. मतलब क्या हो जाएगा पता है, this will become zero, क्रेडिट से 500 हटेगा, डेबिट से भी 500 हटेगा, दिस विल बिकम 22,000. Still your trial balance will tally, obviously not at 1,96,250, but 500 less than that, because मैंने क्रेडिट से 500 निकाला है, डेबिट से 500 निकाला है, ध्यान देना, मैंने क्रेडिट से 500 माइनस किया है, मैंने डेबिट से भी 500 माइनस किया है, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। ऑन सिमिलर बेसिस ये जो सेल्स रिटर्न है 400, इसको माइनस करते हैं सेल्स से, विच इज 47,000. This will become zero, and this will become 46,400, 600. डेबिट से 400 हटाया, क्रेडिट से 400 हटाया, ट्रायल बैलेंस विल टैली। अब इसको हम प्लस माइनस में देखते हैं, इसको एंट्री की तरह देखेंगे। परचेस रिटर्न इज 500, लिखो फर्स्ट एंट्री, परचेस रिटर्न इज 500, राइट। परचेस रिटर्न 500 है, क्रेडिट है, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट किया जाएगा, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट 500, उसको क्रेडिट बैलेंस है ना, वो क्रेडिट साइड पे देखो, परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड पे, तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट टू परचेसेस। परचेसेस डेबिट होता है, बराबर ना, परचेसेस डेबिट होता है, आपने क्रेडिट किया है मतलब परचेस से माइनस किया, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सेकंड, सेल्स रिटर्न 400 डेबिट है, उसको क्लोज करना है, डेबिट को क्लोज करना है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, सेल्स रिटर्न 400, सो दिस इज सेल्स अकाउंट डेबिट 400, ठीक है। These are the two entries. इससे क्या होगा, परचेसेस से परचेस रिटर्न माइनस हुआ, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस हुआ, एंड परचेस रिटर्न बिकम जीरो, पर एंड परचेसेस बिकम 22,000, सेल्स रिटर्न बिकम जीरो, सेल्स बिकम 46,400. ड्राइंग्स है क्या, आर देयर एनी ड्राइंग्स? आई थिंक नहीं, क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है, ओके। ड्राइंग्स होते तो एंट्री आती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, क्या एंट्री आती ड्राइंग्स क्लोज करने की, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। आगे अच्छा, लेट्स स्टार्ट द एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्लोजिंग स्टॉक 48,700, थर्ड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ठीक है, ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री असेट, क्लोजिंग स्टॉक असेट है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, generally we credit trading account, but in real life we credit purchases account, purchases account,
इन हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग को क्रेडिट करते हैं। देखो ना, हम जनरली क्या करते हैं, ट्रेडिंग को क्रेडिट करते हैं। यहां पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग को क्रेडिट किया। इट सिर्फ मीन्स वी कैन डिडक्ट इट फ्रॉम परचेसेस। क्रेडिट पॉजिटिव को अगर डेबिट पे लेके आते हो तो माइनस हो जाएगा। सो एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक परचेसेस से माइनस होना चाहिए। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक परचेसेस से माइनस होना चाहिए। ठीक है, सो एंट्री पास करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड परचेस अकाउंट आर वन एंड द सेम। एक्चुअली फंक्शन दोनों का सेम ही है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड परचेस अकाउंट में तो बहुत बार सेम ही बोलता हूं। आगे कितने का है देखो, 48,700, 48,700। इस एंट्री के बाद, इस एंट्री के बाद क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज आपने एंट्री पास किया। so, क्या हो जाएगा, ध्यान देना, क्या हो जाएगा एवरीवन, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा असेट साइड पे, डेबिट साइड पे। आपने डेबिट किया ना, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट पे आ जाएगा 47,800, 48,700 सॉरी, 48,700। एंट्री का है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेबिट है टू परचेस, परचेस से कम हो जाएगा, माइनस कितना, 48,700। आप बोलोगे सर एक गलत दिख रहा है, क्यों, बिकॉज परचेस आर जस्ट 22,000, परचेस आर जस्ट 22,000 और ये 48,700 है, गलत दिखेगा बराबर ना। देयर शुड बी स्टॉक एज वेल 48,000 का। इसलिए इट विल लुक लाइक कि ये गलत है सर, 20,000 का स्टॉक है, आप वो परचेस से 48,700 ले रहे हो। तो एक्चुअल में ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये एंट्री भी गलत होगी, क्योंकि उतने मेरे पास परचेस नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, ये डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को समझाने में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं कंसेप्ट लेता हूं तो ठीक है, ट्रेडिंग को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एंड में करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्टली। यहाँ पे जो लिखा है ना, पास एडजस्टमेंट एंट्रीज लाइक प्रोविजंस, रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस, क्लोजिंग स्टॉक, ये वाले बाद में करेंगे, ऐसे समझो। वो आपको क्लिक नहीं होगा डायरेक्टली मैं बोलता हूं तो। वी कैन ओपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, उसमें परचेस वगैरह सब ट्रांसफर करेंगे, परचेस क्लोज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोज करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। दैट विल बिकम डिफिकल्ट, इसलिए मैं इसे रखता हूं। सो मैंने परचेस रिटर्न को माइनस किया, सेल्स रिटर्न को माइनस किया, ओपनिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है वो बाद में करेंगे। सो दिस इज पेंडिंग, दिस इज पेंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 700, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200, वेजेस 700, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200, दीज आर पेएबल। एडिंग एक्सपेंस, एडिंग लायबिलिटी, इनकी एंट्री डालेंगे 200, 700, 200। अच्छा, एंट्री डालेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, 700 एंड 200। एक्सपेंसेस डेबिट कर रहे हो, एक्सपेंसेस में ऐड कर रहे हो 2। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 900। एक अकाउंट ओपन किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस में वेजेस विल इंक्रीज बाय 700, 1500 हो जाएंगे।
ट्रैवलिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 200 है क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंस will increase by 200. They will become 450. डेबिट पे 900 ऐड हो गया. ट्रायल बैलेंस टैली कब होता है? ट्रायल बैलेंस टैली कब होगा? डेबिट पे अगर 900 ऐड होता है तो डेबिट पे ही कोई माइनस होना चाहिए 900, या क्रेडिट पे 900 ऐड होना चाहिए. अगर डेबिट पे 900 ऐड हुआ है तो टैली करने के लिए डेबिट का कोई तो 900 माइनस होना चाहिए या क्रेडिट पे 900 ऐड होना चाहिए. दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट. एक नया आइटम आ जाएगा ट्रायल बैलेंस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 900. एंट्री पास की, एड इन एक्सपेंस. एड इन एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस को डेबिट, एड इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्रेडिट. अब ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में गई है, इसको फिर से करना है क्या? नहीं. डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%. लैंड एंड बिल्डिंग को 10%. किधर है लैंड एंड बिल्डिंग? 42,500. वहां से 4250 माइनस होगा, वहां से 4250 माइनस होगा. डेबिट से 4240 माइनस हुआ. डेबिट से ट्रायल बैलेंस टैली होने के लिए क्रेडिट माइनस होना चाहिए या कोई डेबिट पे ऐड होना चाहिए 4250. एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग कम हो जाएगा एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा. सो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट आ जाएगा 4250 डेप्रिसिएशन. देखो क्या हो गया, असेट से हट गया और एक्सपेंस बन गया. दोनों डेबिट है, एक डेबिट कम हो गया, दूसरा डेबिट इंक्रीज हो गया. ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही होगा. एंड फर्नीचर को 5% माइनस 5%, वो आएगा 1935, 1935. फर्नीचर से माइनस होगा और डेप्रिसिएशन डेबिट में ऐड होगा. देखो ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही होगा. ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्यों? बिकॉज एक डेबिट कम हुआ, दूसरा डेबिट इंक्रीज हुआ. एंट्री लिखो इसकी. नंबर 4, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू फर्नीचर. कुछ तो 1935 था और ये कितना था? 1935 और ये 4250, 4250 टोटल आ जाएगी 85, 11, 56, 6185. सो ट्रायल बैलेंस में असेट से हट जाएगा, डेबिट से हट जाएगा 6185 और डेबिट में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा 6185. सो दिस एडजस्टमेंट, इसकी एंट्री पास की है. ट्रायल बैलेंस में चेंजेस हो चुके हैं. आगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300, इंश्योरेंस से माइनस होगा. डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, डेबिट से 300 माइनस होगा. इंश्योरेंस कम हो गया, टैली होने के लिए क्रेडिट पे 300 माइनस होना चाहिए या डेबिट पे कोई आइटम 300 से इंक्रीज होना चाहिए. दोनों में से एक. डेबिट पे ऐड हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस. डेबिट पे ऐड हो जाएगा 300. सो डेबिट से 300 माइनस हो गया, डेबिट पे 300 ऐड हो गया. इट विल टैली. वजन काटा होता है ना, वैसे रहता है ये. दोनों सेम होने चाहिए. डेबिट पे 300 माइनस हुआ तो टैली होने के लिए क्रेडिट पे 300 माइनस होना चाहिए या डेबिट पे 300 ऐड होना चाहिए. तो यहाँ के एक डेबिट माइनस हुआ, दूसरा डेबिट इंक्रीज हुआ. इसकी एंट्री लिखो. प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो लिखना है लिखो. 300 एंट्री. अब मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं एंट्री लिख रहा हूं. 300 टू इंश्योरेंस.
मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आप प्लस माइनस करते हो एक्चुअली एंट्री कर रहे हो, ये मैं समझा रहा हूँ। 300। नेक्स्ट। हम्म इसकी एंट्री कर दी, यस। गुड्स ऑफ रुपीज 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। 3000 के गुड्स लॉस्ट हो गए एंड देयर इज नो क्लेम, एंट्री आएगी। इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल 0, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी आप 11th में लेते थे वो 0। लॉस बाय फायर, आई डोंट नो क्या है, डेबिट 3000। 2 परचेसेस अकाउंट क्रेडिट, कोई लोग लेते थे तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वगैरह, बट एक्चुअली फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर परचेस में ट्रांसफर होगा, सो बेटर डायरेक्टली परचेस कर डालो 3000। 3000, ठीक है। सो लॉस बाय फायर, डेबिट इंक्रीज हुआ, परचेसेस डेबिट कम हो गया, ट्रायल एंड टैली हो गया होगा, अब परचेस से 3000 माइनस होगा, परचेस से 3000 माइनस होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा लॉस बाय फायर डेबिट पे। हो गई एंट्री, परचेस से 3000 माइनस हुआ और लॉस बाय फायर 3000 ऐड हो गया डेबिट पे, ट्रायल बैलेंस विल टैली। ठीक है, नाउ चलो एवरीवन, देखो रिवाइज ट्रायल बैलेंस, एवरीवन रिवाइज ट्रायल बैलेंस, रिवाइज ट्रायल बैलेंस, एवरीवन लिखो रिवाइज ट्रायल बैलेंस, रिवाइज ट्रायल बैलेंस। रिवाइज ट्रायल बैलेंस, ठीक है, लिखो अकाउंट डेबिट अकाउंट रुपीज, क्रेडिट अकाउंट रुपीज। ले लो, ठीक है एवरीवन। ये मेरा ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, बराबर। मैं जानबूझ के समझा रहा हूँ ये चीज, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअल में होता क्या है और आप जो कर रहे हो एक्चुअली क्या है, ये मुझे समझाना है। हम्म हम्म अच्छा, पूरा पेज चला गया इसमें, ठीक है।
नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाँ नीचे. हाँ लेट्स स्टार्ट. स्टॉक 48,000, ओपनिंग स्टॉक 48,000 डेबिट. उसमें कोई चेंज है क्या इंटरेस्ट के बाद? नहीं. 48. नेक्स्ट. कैपिटल्स कोई चेंजेस है क्या? नहीं. कैपिटल चेंज होते ड्रॉइंग्स की वजह से, बट नहीं है कुछ. कैपिटल क्रेडिट में लिखो. रिद्धि सिद्धि. रिद्धि सिद्धि 50-30. देन उसके बाद परचेसेस चेंज हुए. 22,000 माइनस 3,000, 19,000 हो चुके हैं परचेसेस. 19,000. सो परचेज चेंज हो चुके हैं. तो भी एडजस्टमेंट परचेसेस की थी हमने की. परचेस रिटर्न माइनस किया. गुड्स लॉस्ट बाय फायर थे वो किए. ठीक है आगे. देन नो नो डोंट वरी. अरे तुमने जो 11th में सीखा था ना वो लॉस बाय फायर वगैरह, वो गलत है. एक्चुअल में एंट्री आप लॉस की एंट्री का डालते थे 11th में. यू यूज टू पास द एंट्री इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट. ठीक है आगे. देन ठीक है आगे. एंट्री सोचो ना, एक ट्रांजैक्शन है. एंट्री क्या आएगी? किधर जाएगा? डेबिट पे जाएगा क्रेडिट पे? वो जाने दो. पहले ये देखो कि आप एंट्री क्या लिखते थे 11th में. ठीक है ये ट्रांजैक्शन है. आगे. देन मिल जाएगा आपको, डोंट वरी. परचेसेस 19,000 हो गए. वेजेस कितने हो गए? 700 प्लस 800, 1,500. वेजेस लिखो. वेजेस डेबिट 1,500 चेंज हो गए वेजेस. बराबर. आगे. फिर कैरेज इनवर्ड 1,000. कैरेज इनवर्ड 1,000. देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,600. देन आगे. बिल्स पेबल 20,000. देन कैश इन हैंड 2850. देन कैश इन हैंड हुआ. उसके बाद इंश्योरेंस 1,200 माइनस 300, 900. इंश्योरेंस 900 चेंज हुआ है देखो. आगे. उसके बाद डेटस 32, ओडी 18. ओडी 18. देन नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड 900. देन कैरेज आउटवर्ड 900. लैंडन बिल्डिंग माइनस हो चुकी है. लैंडन बिल्डिंग. उसके बाद फर्नीचर है. लैंडन बिल्डिंग कितनी रहेगी डेप्रिसिएशन देने के बाद? 250 बचेगा. 38,250. 38,250. देन और
जब मैं एंट्री डालूंगा तो एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगी। ये कितना बचेगा? इफ आई डिडक्ट 2000, 38,700 से 2000 माइनस 36,700 रहेगा और 65 ऐड करना होगा। सो 36,765, 36,765 चेक करो, बराबर होना चाहिए। देन आगे, उसके बाद सेल्स डिक्रीज होके 46,400 है सेल्स क्रेडिट पे। $46,400, यस। देन आगे 46,400 सेल्स हो गए, परचेस रिटर्न 0 हो चुके हैं, सेल्स रिटर्न 0 हो चुके हैं, उनको लेना मत। अब रेंट क्रेडिट वाला है, इनकम 800। देन रेंट हो गया 1,800, बैड डेट्स 300, आरडीडी 350। ये 1,800 है, ये 350। 1,800, 350, बैड डेट्स 300, डिस्काउंट 700,000। बैड डेट्स 300 है शायद से। डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखते हैं। बैड डेट्स 300 था, डेबिट वाला डिस्काउंट 700, क्रेडिट वाला 1,000, 700,000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस 450 हो चुके। देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 4150, उसके सिवा नए कौन से अकाउंट्स आए? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया 900 क्रेडिट पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 900, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 900, बराबर। उसके बाद डिप्रिसिएशन आया है 1250 एंड 1935, टोटल आ जाएगा वो 85, 1 कैरिड 6185, 6185, 6185 डेप्रिसिएशन डेबिट पे। देन आगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300, लॉस बाय फायर 3000, लॉस बाय फायर 3000। योर ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली, चाहे तो कैलकुलेटर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखते हैं। पहले क्रेडिट लेते हैं, 48,000 प्लस 19,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 2850 प्लस 900, 32,900, 38,250, 36,765, 300, 700, 450, 4150, 6185, 300 प्लस 3,000, 1,96,250 आ रही मेरी टोटल, 1,96,250। लेस 50, 30, 27,600, 20, 18, 46,400, 1,800, 350, 1,000 माइनस 900। किधर तो मेरा लेते टाइम कुछ मिस हुआ है, एनीवन? किधर मेरी टोटल लेते टाइम गलत हुई तो वो भी मुझे बोल सकते हो।
सर इट शुड बी 46,600 क्या? अच्छा बराबर, वो 200 कम था। तो टैली हो गया मेरा 1,95,096,250। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एवरीवन, नाउ यू कैन सी, ये मुझे समझाना है आप लोगों को, ये क्लिक होना चाहिए कि जब डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में, जब डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है, it is already deducted from your land and building, it is already deducted from your land and building and furniture, ऑलरेडी उससे माइनस हो चुका है वो। सो जब हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में आया ना, वैसे वो ट्रायल बैलेंस में नहीं रहता। सो जब डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में, इट मींस लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर is already after depreciation, the fixed assets are already after depreciation. Similarly, जब प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में आया, मींस इंश्योरेंस इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। जब प्रीपेड इंश्योरेंस खुद ट्रायल बैलेंस में, मतलब जो इंश्योरेंस होगा ट्रायल बैलेंस वाला, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग योर प्रीपेड। सिमिलरली जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में आए हैं, तो आपके वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था ना वो, एक सेकंड, दो चीजें थी, एक था वेजेस एंड दूसरा था ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बोथ वर आफ्टर एडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बोथ वर आफ्टर एडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब जब ये आइटम्स आते हैं, प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में आया है, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में आया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आया है, मतलब यू हैव एडजस्टेड देम, आपने उनको एडजस्ट किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने उनको एडजस्ट किया, इसलिए मतलब फिर से उनके लिए एडजस्टमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, फिर से एडजस्ट करने का नहीं, हमने पहले ही उनको एडजस्ट किया है। सो व्हेनेवर प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीवेबल, अगर ये चीजें ट्रायल बैलेंस में रहती है, तो इट मींस दोज हैव ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड, दोज हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, देयरफॉर नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। इसलिए ट्रायल बैलेंस में जो रहता है उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती, उनको डायरेक्टली एक जगह पे लिखा जाता है। आगे उसके बाद बहुत लोगों ने पूछा सर इंश्योरेंस का क्या? देखो हम क्या करते हैं, इफ यू रिमेंबर, हम क्या करते हैं, 3,000 लॉस हो गया बराबर, P&L ट्रेडिंग क्रेडिट, और 3,000 का 3,000 लॉस है बिकॉज देयर इज नो क्लेम, क्लेम है कुछ जीरो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग टू ट्रेडिंग, क्या मैं यहां से माइनस नहीं कर सकता? मैं डेबिट इक्वल टू क्रेडिट इक्वेशन है, जब इक्वेशन की साइड चेंज हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव ऑन क्रेडिट इज नथिंग बट निगेटिव ऑन डेबिट, परचेस से माइनस, परचेस से माइनस होगा, जितना क्लेम है जीरो डेबिट, एंड जो क्लेम नहीं वो लॉस डेबिट। परचेस से माइनस हो रहा है, डेबिट से माइनस हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, दिस इज क्रेडिट 6,000, डेबिट जीरो, डेबिट 3,000, क्रेडिट 3,000, डेबिट जीरो, डेबिट 3,000 हो गया टैली। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने उसको परचेस से, जब लॉस बाय फायर आ गया ट्रायल बैलेंस में, जब लॉस बाय फायर आ गया, इसका मतलब दैट हैव बीन ऑलरेडी एडजस्ट इन द ट्रायल बैलेंस, वो आपने परचेस से ऑलरेडी माइनस किया होगा। इसका मतलब परचेसेस इज आफ्टर लॉस बाय फायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परचेसेस आफ्टर लॉस बाय फायर, एंड ये बनेगा आपका रिवाइज ट्रायल बैलेंस। मतलब यू पास द इंट्रीज, यू डोंट एक्चुअली ऐड माइनस, आप इंट्रीज पास करते हो, एंड देयरफॉर जो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, रियल लाइफ में आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे, और फिर एक ट्रायल बैलेंस बनेगा टैली में, और फिर उस ट्रायल बैलेंस में जो जो एडजस्टमेंट है फिर से एंट्री डालोगे, एंड यू विल गेट ए न्यू ट्रायल बैलेंस, जो ये मिल गया। ठीक है, नाउ दिस इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बट इसमें और भी एडजस्ट करनी बाकी है, लिख लेना। अब कौन सी चीजें एडजस्ट नहीं की? फर्स्ट एडजस्टमेंट्स अभी भी कौन सी बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट अभी तक हमने की नहीं, विच इज 48,700। तो उसके नीचे लिखता हूं 48,700, ये अभी भी एडजस्ट करना बाकी है। सेकंड बस क्लोजिंग स्टॉक की नहीं की, बाकी सब किया। मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं किया? बिकॉज मेरे पास उतने परचेसेस नहीं दिख रहे थे। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस मिलके दिख रहा है, दोनों मिलके दिख रहा है, बिकॉज यू हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऑलमोस्ट 48,000, परचेसेस ऑफ 19,000, 48 प्लस 19, टोटल मेरे पास 67,000 का स्टॉक है। 67,000 का स्टॉक है, उसमें से 48,700 अभी भी बाकी है, माइनस 48,700 अभी भी बाकी है। मतलब जो मेरे पास सेल करने के लिए क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये सेल करने के लिए रहेगा आपके पास। ओपनिंग स्टॉक कितना था 48, नेट सब होने के बाद परचेज कितने आए 19, so that is 48,000 प्लस 19, मेरे पास टोटल 67,000 का स्टॉक था। 67,000 का स्टॉक था, इसमें से अनसोल्ड कितना है उन्होंने लिखा है, 67 में से अनसोल्ड कितना है 48,700 का मैं सेल नहीं कर पाया। क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक इज दैट स्टॉक विच इज नॉट सोल्ड 48,700, मतलब मैंने कितना सेल किया 18,300। दिस इज सोल्ड एट 18,300 का स्टॉक मैंने कितने में सेल किया 46,600 में। कितने में 46,600। हमारे पास पहले ही 48,000 का स्टॉक पड़ा था, 48,000 कॉस्ट का स्टॉक पड़ा था। हमने साल भर में नेट 19,000 स्टॉक परचेस किया, तो हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, अवेलेबल फॉर सेल इज 67,000। उसमें से 48,700 वो बोल रहे अनसोल्ड है क्लोजिंग में, तो सेल हुआ है 18,300 कॉस्ट। दिस इज कॉस्ट प्राइस, this is cost price, this is also cost price. So 18,300 का स्टॉक 46,600 पे सेल, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट है आपका। देखो ना 48,000 का स्टॉक आप 46 में सेल कर रहे हो, 18,000 का स्टॉक आप 46 में सेल कर रहे हो ऑलमोस्ट। सो 18 का डबल 36 होता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया आपने। जीपी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर जीपी, फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह माइनस होंगे, बट मैं समझा रहा हूं। सो एक ही एडजस्टमेंट करनी बाकी क्लोजिंग स्टॉक। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब ट्रेडिंग एंड P&L जो एडजस्टमेंट करना बाकी है, खाली वही एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी कुछ भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ट्रायल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, दिस इज आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट चलो, दिस इज ट्रेडिंग एंड P&L। दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज बैलेंस शीट, ठीक है। चलो एक एक, ओपनिंग स्टॉक, अब क्या एंट्री आएगी, अब एंट्री आएगी ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोज करने की एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। एंट्री सोच तो जाओ 48, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस कितना, एक सेकंड मैं यहां पे लिखता हुआ ध्यान देना, 19,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर करेंगे, देखो वेजेस क्या एंट्री आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस 1,500। मेरे साथ चलो आगे मत जाओ, वेजेस
1500। और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड। कितना है कैरेज इनवर्ड? 1000 टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एंट्री समझा रहा हूं मैं, क्या एंट्री आ रही है? 1300। एंट्री क्या गई? सॉरी 1300 लिखा है, 1000 है वो। क्या एंट्री आ गई? ट्रेडिंग टू कैरेज क्लोज। कैश को रहने दो, इंश्योरेंस लेने, और इनडायरेक्ट है डेटर्स कैरेज आउट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट क्या है? एक भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। ठीक है, पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लोज किया जाएगा। कैसे क्लोज किया? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू योर इनवर्ड। सो इसकी वजह से ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, माय ओपनिंग स्टॉक हैज बिकम जीरो, purchase has become zero, wages has become zero, carriage inward has become zero. Why? Because मैंने उनको क्लोज किया, वो जीरो हो गए, एंड उनकी जगह किसने ली? ट्रेडिंग अकाउंट ने ली। अब सेल्स को ट्रांसफर किया जाएगा। सेल्स सेल्स 46,600 सेल्स क्रेडिट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे डाला जाएगा। बाय सेल्स। एंट्री क्या आ रही है? ट्रेडिंग के क्रेडिट पे सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 46,600। इसलिए सेल्स अकाउंट विल बिकम जीरो, सेल्स अकाउंट विल बिकम जीरो, उसकी जगह ट्रेडिंग ले ली। फिर अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है। क्या एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना था? 48,700। and that will be shown on the asset side. उसके एडजस्टमेंट नहीं किए थे ना ट्रायल बैलेंस फाइनल करने के पहले, वो एडजस्टमेंट में था 48,700 48,700। एक्चुअली वो भी मैं ना एडजस्ट कर देता हूँ परचेस के अगेंस्ट, ठीक है, बट वो परचेस निगेटिव दिखता है, आप कंफ्यूजन, आपका कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग ही रखा। देन ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट, फाइंड आउट द बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट ही होना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट होना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट। सो 46,600 प्लस 48,700 95,300 95,300 minus 48,000 minus 19 minus 1,500 minus 1,000 25,800 to gross profit। ट्रांसफर टू P&L। चेक करो बराबर है क्या एवरीवन? ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $25,800 25। क्या एंट्री हो गई इसकी पता है? इसकी एंट्री क्या हो गई पता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, ट्रेडिंग के डेबिट पे टू P&L, P&L के क्रेडिट पे बाय ट्रेडिंग। या इसको अब एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, पता है, यहां पे लिखना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L इनटू ब्रैकेट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड यहां पे लिखना चाहिए अगर ट्रेडिंग के डेबिट पे P&L है तो P&L के क्रेडिट पे क्या रहेगा? बाय ट्रेडिंग।
समझा? सो एंट्री क्या आती है? ट्रेडिंग डेबिट टू पी एंड एल। ट्रेडिंग क्लोज हो गया, पी एंड एल ओपन हो गया। पी एंड एल क्यों ओपन होता है? बिकॉज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। पी एंड एल स्टार्ट्स विथ ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट या ग्रॉस लॉस डेबिट। पी एंड एल स्टार्ट्स विथ बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग शोज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सो हमेशा याद रखना, अगर आप खाली पी एंड एल करते हो, खाली पी एंड एल करते हो, कभी कभी क्वेश्चन में वो जानबूझ के आपको ग्रॉस प्रॉफिट देंगे और बोलेंगे करो आगे। तो अगर उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हमें डायरेक्टली पी एंड एल से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर ग्रॉस प्रॉफिट तो पी एंड एल के क्रेडिट पे, या अगर ग्रॉस लॉस है तो पी एंड एल के डेबिट पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अरे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पागल हो गए करे तुम लोग? सारिका मैडम देखो यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया ना, ये है और परचेस से माइनस हुआ है। वो एंट्री डाल दी मैंने। अब वो एंट्री भूल भूल जाओ ना। अब ये ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना है। ठीक है क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट में? है क्या मेरा कुछ एडजस्ट करने का मुझे इधर? नहीं। दूसरी बात, आई हैव ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस। गुड्स लॉस्ट बाय फायर मैंने परचेस से ही माइनस किए हैं, तो परचेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं लॉस बाय फायर के लिए, फिर से क्यों एडजस्ट करना है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउट होता है, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप ऐसे कुछ, और यही होता है एक्चुअल में। हमें पता होना चाहिए एक्चुअली क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक से सीखोगे। अच्छा, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर करते हैं, चलो एक एक। इंश्योरेंस 900 डेबिट है तो पीएनएल के डेबिट पे जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। अब इस इंश्योरेंस को एडजस्ट करना है क्या? नहीं, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। देन उसके बाद कैरेज आउटवर्ड 900, एंट्री आएगी पीएनएल टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कितना है? कैरेज आउटवर्ड 900, दोनों 900 900 थे। ठीक है, इंश्योरेंस भी 900, ये भी 900। गुड। देन लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह वो रहने दो, फर्नीचर रहने दो। बैड डेट्स 300, पीएनएल टू बैड डेट्स 300 थे, क्लोज हो गया। डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल टू डिस्काउंट अलाउड 700। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पीएनएल टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 450। पीएनएल टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 450। देन एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, एडजस्ट हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट 4150, पीएनएल टू एडवर्टाइजमेंट 4150। डेप्रिसिएशन 6185 टू डेप्रिसिएशन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 6185। देखो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन वो असेट से माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं, एक ही इफेक्ट, पीएनएल डेबिट, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन आया है तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, फिर से ऐड मत करो। ठीक है, आगे। देन लॉस बाय फायर 3000 टू लॉस बाय फायर, डेबिट रिमेन्स डेबिट। लॉस बाय फायर, सो ये सब क्लोज हो गए, जीरो बैलेंस हो गए उनके। मैं उनको इंश्योरेंस क्लोज, कैरेज क्लोज, क्लोज, बैड डेट्स क्लोज, क्लोज, एडवर्टाइजमेंट क्लोज, डेप्रिसिएशन क्लोज, ये सब जीरो हो गए, ये सब जीरो हो गए। ठीक है, अब अदर इनकम है कुछ, देखो अदर इनकम, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अच्छा, रेंट, रेंट को क्लोज किया जाएगा कैसे? रेंट को कैसे क्लोज किया जाएगा? बाय क्रेडिटिंग टू विच अकाउंट? पी एंड एल, बाय रेंट।
कितना है देखो, बाय रेंट 1800। एंट्री आ रही है पी एंड एल के क्रेडिट पे, एंट्री आ रही है रेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, क्लोज कर दिया, वो भी जीरो हो गया, वो भी जीरो हो गया। आरडीडी को क्लोज करना होता है, जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी है उसका कोई यूज है नहीं, चलो उसको भी क्लोज करते हैं। क्या एंट्री आती है, आरडीडी जब क्रिएट करते हो, प्रोविजन क्रिएट करते हो, पी एंड एल टू प्रोविजन, पी एंड एल टू प्रोविजन आती है, उसको कैंसिल करना है, प्रोविजन टू पी एंड एल, प्रोविजन डेबिट पी एंड एल क्रेडिट, पी एंड एल के क्रेडिट पे बाय आरडीडी। कितने का आरडीडी था, 350। एक और है, कुछ तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी, उसको भी क्लोज करना है 1000 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। 1000 पी एंड एल के क्रेडिट पे गया 1000, आरडीडी क्लोज, डिस्काउंट रिसीव्ड क्लोज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, पहले पी एंड एल क्लोज करेंगे अब, ठीक है सब आ गया। अब यहां से नेट प्रॉफिट पता चलेगा, ले लो। नेट प्रॉफिट 25,800 प्लस इनकम्स, ये आ जाएगा 28,950। माइनस 900, 900, 300, 700, 450, 4150, 6185 माइनस 3000, 12,365। चेक करो एक बार, 12,365। Yes, this will be distributed between the partners in their PSR, which is कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, इक्वल, कुछ लिखा नहीं तो दे आर इक्वल पार्टनर्स, इसलिए टू, एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल लिखना चाहिए, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इनटू ब्रैकेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिद्धि सिद्धि, हाफ हाफ, 6182 एंड 83 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेबिट है, क्या एंट्री क्या नेट प्रॉफिट की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या एंट्री आ गई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पी एंड एल के डेबिट पे इसलिए पी एंड एल डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट पे, पी एंड एल के डेबिट पे टू कैपिटल है, तो कैपिटल में क्या आएगा, बाय पी एंड एल। लेट्स स्टार्ट। बाय पी एंड एल इंटू ब्रैकेट एनपी 6182 6183, ठीक है। अब देखो ये सब अकाउंट जीरो हो चुके हैं आपके इसमें, अब खाली कौन से अकाउंट बाकी है, असेट्स एंड लायबिलिटीज, खाली कौन से अकाउंट बाकी है, असेट, चलो अब उनको एक जगह पे लिखते हैं, कैश 2850 लिखो, कैश 2850, देन डेटर्स 32, देन
उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 38,250, देन फर्नीचर 36,765, 36,765, furniture. Then directly prepaid 300. क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर लेता हूं, ठीक है। आगे डेबिट के सब ये कभी क्लोज नहीं होंगे, कैश क्लोज नहीं होगा, डेटर्स क्लोज नहीं होंगे, फिक्स एसेट क्लोज नहीं होंगे, प्रीपेड क्लोज नहीं होगा, उसको हमने प्रेजेंट किया, उनमें बैलेंस अभी भी बाकी थे। वैसे अब कैपिटल्स 50-30 बाय बैलेंस डॉट डाउन, $50,000 $30,000। देन आगे कैपिटल डन, क्रेडिटर्स 27,600, 27,600। देन बिल्स पेबल 20,000, देन बिल्स पेबल 20,000, देन ओवरड्राफ्ट 18,000, देन ओवरड्राफ्ट 18,000। अच्छा, कैपिटल गए, क्रेडिटर्स गए, बिल्स पेबल गया, ये गया, एंड नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 900, कैपिटल क्लोज करो, कैरी इट डाउन 56,182, 36,183 कैपिटल्स रिद्धि सिद्धि। $56,182, then 36,183, 56,182 plus 36,183, 92,365 रहेगा। Now your balance sheet will tally, अपने आप टैली हो जाएगा। देखो 92,365 plus 27,600 plus 20,000 plus 18,000, 1,58,865। परफेक्ट। $865 हो गया टैली। देखो ना, मैंने एक भी एडजस्टमेंट नहीं की, फिर फाइनल अकाउंट में कुछ प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, एक भी एडजस्टमेंट नहीं किया। अब देखो ना, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया एसेट से नहीं, बिकॉज मैंने पहले एंट्री पास की थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड किए यहाँ पे P&L में, अलग से नहीं, वो पहले ऐड किए थे। लाइबिलिटी में अलग से ऐड किए क्या? नहीं, वो पहले लाइबिलिटी में आ चुके थे।
तो एक्चुअल में ऐसे होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन एक्सरसाइज. आपके आंसर के साथ टैली करो, आंसर यही रहेगा. सो व्हाट यू एक्चुअली डू, यू एक्चुअली रिवाइज द ट्रायल बैलेंस. देखो ट्रायल बैलेंस रिवाइज किया हमने, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस टैली होगा ना जब आप एंट्री डालोगे, क्यों टैली नहीं होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो मैंने हाईलाइट किया ना यहाँ पे ये सब चीजें, दे हैव बीन एडजस्टेड. Purchases adjusted for adjustments related to purchases. Wages is adjusted for adjustment related to wages. Insurance is adjusted for the adjustments related to insurance. Land and building and furniture depreciation के लिए adjust किया है. Traveling expenses उसके लिए adjust किया है. So कोई चीज जो ट्रायल बैलेंस में पहले नहीं थी, अब वो ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, एंड वो एडजस्टमेंट से हटके ट्रायल बैलेंस में आ गई. एंड जब वो एडजस्टमेंट से हटके ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी तो फिर से उनको एडजस्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं. क्लोजिंग स्टॉक को मैंने वैसे के वैसे रखा था बिकॉज परचेस निगेटिव दिखता है एंड आपको कंफ्यूज हो जाता. ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए मैंने उसको एडजस्टमेंट में वैसे वैसे रखा. अब जो पूछ रहे थे कि लॉस बाय फायर सर आपने क्रेडिट पे क्यों नहीं लिखा, मैंने क्रेडिट पे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज मैंने पहले उसको परचेस से माइनस करके रखा है. अगर मैंने परचेस से माइनस नहीं किया होता तो मैं क्रेडिट पे लिखता, बट मैंने पहले ही परचेस से हटाया है और एक अकाउंट आ चुका था लॉस बाय फायर जो डेबिट पे आ गया. ये है एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स. ऑब्वियसली इन महाराष्ट्र बोर्ड दे विल नेवर आस्क यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट समझो हम एडजस्टमेंट्स मतलब क्या कर रहे हैं. एडजस्टमेंट्स मतलब हम इंट्रीज डाल रहे हैं, जब प्लस माइनस बोल रहे हैं ना उसको हम इंट्रीज बोल रहे हैं. आंसर सेम है, कुछ भी आंसर में फर्क नहीं, बट खाली प्रोसेस लेंदी हो गई. रीजन, हमने प्रॉपर इंट्रीज डाले, फिर हमने ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट किया और फिर हमने उसको फाइनल अकाउंट्स में, राइट, हमने फिर नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज किया एंड जो बाकी बैलेंसेस है रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट उनको हमने प्रेजेंट किया इन अ बैलेंस शीट. एंड रियल लाइफ में ऐसे ही करते हो. द अकाउंटेंट विल गिव यू फाइनल अकाउंट, वो आपको फाइनल अकाउंट्स के लिए ट्रायल बैलेंस देगा. हम पहले स्टडी करेंगे ट्रायल बैलेंस करेक्ट या रॉन्ग है, देयर कैन बी रेक्टिफिकेशंस, हम उनको एडजस्ट करेंगे और एक नया ट्रायल बैलेंस करेंगे हमारे हिसाब से एंड उस ट्रायल बैलेंस को हम फाइनल अकाउंट्स में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज द प्रोसेस. एग्जाम में नो वन विल आस्क यू कि पास दिस एंट्रीज एंड एवरीथिंग, बट मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक्चुअल में हम करते क्या है. ठीक है, आपका आंसर दोनों सेम ही होगा. देखो उनके हिसाब से भी वही आंसर होगा, अगर उनका करेक्ट होगा तो ये 25,800 एंड 12,365 वही है, 1,58,865 वही है. ठीक है, टेक्स्ट बुक का आंसर आपके पास है और जो मैंने आंसर दिया है दिस इज एक्चुअली ऐसे होता है. We actually pass the depreciation entry, we actually pass the prepaid entry. हम इंश्योरेंस प्रीमियम के पॉलिसीज लेके बैठते हैं और चेक करते पीरियड क्या है. एक्चुअल में होता है जो प्रीमियम पेड हुआ है अकाउंटेंट ने एंट्री डाली होती है इंश्योरेंस टू बैंक. मैं बोलता हूं मुझे पॉलिसी दे दो, उस पॉलिसी में पीरियड लिखा होता है. एक सेकंड, इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट. रहेगा किधर तो देखो यहाँ पे पॉलिसी टर्म होगा, दिख रहा है. रिस्क कमेंसमेंट डेट, कब पॉलिसी स्टार्ट हुई, कितने साल के लिए पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स.
तो यहां से हम देखते हैं कि ईयर का कितना है। एक्चुअली ऐसे एक होना चाहिए जिसमें सब चीजें लिखी हो। सो एक्चुअली यहाँ पे इसे किसी का मिलना मुश्किल है। शायद से मेरे इसमें हो सकता है। आई डोंट नो, मैंने बीच में सब मेल डिलीट किए थे, सो नहीं होगा शायद से। नहीं रहेगा क्योंकि बीच में मैंने सब मेल डिलीट किए थे, ठीक है। बट उसमें टर्म्स होती है, हम एक्चुअल लेके बैठते हैं, पता है क्या कि ये पॉलिसी की टर्म क्या है, एंड हम उसको बाइफरगेट करते हैं कि करंट ईयर का कितना, नेक्स्ट ईयर का कितना, और हम एंट्री डालते हैं। अकाउंटेंट को बोलते हैं चल एंट्री डाल, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। हम एक्चुअल में रेंट एग्रीमेंट लेके बैठते हैं, रेंट एग्रीमेंट, मंथली रेंट एग्रीमेंट कितना है, राइट, मंथली रेंट कितना है। और हम देखते हैं कि अगर सपोज 1 लाख मंथ है, मंथली है, मल्टीप्लाई बाय 12, रेंट अकाउंट में 12 लाख होना चाहिए। नहीं है, क्यों नहीं है पूछते हैं उसको, वो बोलता है 1 मंथ का पेड नहीं हुआ है, तो चल डाल 1 लाख की एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल। हम एंट्री डालने को बोलते हैं, हम प्लस माइनस नहीं करते, हम एंट्री डालने को बोलते हैं। समझ में आ रहा है। हम क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। एवरीवन, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस था, एवरीवन ध्यान देना, खाली एक एक मिनट में मैं समझाता हूँ। एवरीवन, क्या होता, हम क्या करते पता है, ये जो परचेसेस है, ये दिख रहा है परचेस, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस, इन दोनों को एक अकाउंट में डाल देते हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मैं इन दोनों को बोलता, दोनों की टोटल 67,000। इंस्टेड टू, ये दो आइटम्स दिखाए ना आपने, दो लाइंस दिखाए ट्रायल बैलेंस में, एक 48 की और एक 19 की। ये दो लाइंस की जगह में एक लाइन नहीं डाल सकता, सीओजीएस चल जाएगा ना, एंट्री आएगी। ध्यान देना, मैं एंट्री लिख रहा हूं उनके लिए जिनको समझ में आता है, नहीं समझा तो भी चलेगा। मैं पहले एंट्री डालूंगा सीओजीएस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, अकाउंट डेबिट 67,000 टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोज हो गया, क्लोज हो गया 48,000 टू परचेसेस 19,000। ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, क्लोज, उनकी जगह एक ही अकाउंट लेगा। अब ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखेगा, परचेस भी नहीं देगा, डेबिट में 67,000 है, टैली वही पे होगा, बट दो आइटम की जगह एक आइटम दिख रहा है, कितना 67। और फिर इस क्लोजिंग स्टॉक को एंट्री डाल दूंगा, एंट्री आएगी सेकंड, क्या एंट्री आएगी, ध्यान देना। अच्छा एक सेकंड, ठीक है। मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस को एक अकाउंट में डाल दिया, दोनों एक ही होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस क्या गुड्स ही है ना, एक अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम दे दिया सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या नाम दे दिया, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इंस्टेड ऑफ टू आइटम्स इन अ ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक अलग से, परचेस अलग से, दोनों को एक में डाल दिया, सीओजीएस, उसका नाम चेंज कर दिया खाली सीओजीएस। अब क्लोजिंग स्टॉक एंट्री आएगी, एंट्री आएगी, ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 40 समथिंग था, 48,700 था, टू सीओजीएस। फिर मैंने क्या किया, इस 67,000 में से
48,700 जो सेल नहीं हुआ उसको बोला सीओजीएस, उसको बोला क्लोजिंग स्टॉक। ये वाला यहाँ पे लिखा था मैंने, कहा पे ये गया क्लोजिंग स्टॉक, और ये बाकी है 18,300। ऐसे करके ट्रायल बैलेंस अपडेट हो जाता। क्या किया मैंने, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस को एक अकाउंट में डाल दिया, उसका नाम क्या है, सीओजीएस। वो कितने का होगा, 67। फिर 67 को बाइफरगेट किया, स्टॉक में कितना है और सेल कितना है। सो इसको मैंने बोला 83,300 सीओजीएस बाकी रहेगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 48,700। अब ध्यान देना, आप बोलोगे सर इसका कैसे रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक असेट में जाएगा, 48,000 डेबिट है, असेट में जाएगा, और फिर ये कितना दिखेगा पता है, ये कैंसिल हो गया होगा, ये कैंसिल हुआ होगा, ये भी नहीं आएगा, इन इन सब की एक टोटल आ जाएगी, विट विल बी 18,300। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे दिखेगा 2 सीओजीएस। ले लो कैलकुलेटर पे, या देखो 48,000 प्लस 19,000, 67,000 माइनस 48,700, इट इज 18,000। सो ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा सेल 18,300, ये दिखेगा, ये दिखेगा, अपने प्रॉफिट आ जाएगा। हम खाली अकाउंट्स के साथ खेल रहे, हम कुछ अलग नहीं कर रहे। सो इंस्टेड ऑफ शोइंग ओपनिंग स्टॉक, परचेस एंड क्लोजिंग स्टॉक सेपरेटली, तीनों अलग अलग दिखाने से एक जगह क्यों नहीं दिखा सकते क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक तीन अलग आइटम है, उनको एक आइटम नहीं बोल सकता क्या मैं? वही किया मैंने, 18,300, फिर भी आंसर वही रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट वही रहेगा, एक्चुअल में वैसे होता है। वो सबको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने समझाया नहीं, ठीक है। सो परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक ये सीओजीएस में ट्रांसफर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि आप कोई भी बैलेंस शीट उठाओ, कोई भी बैलेंस शीट उठाओ, सपोज हम अ, हम्म, अरे ईमेल का दूसरा भी नाम है मारुति। देखो मैं आपको दिखाता हूँ उनके पीएनएल में क्या ना क्या रहता है। जस्ट 1 मिनट एंड देन डन। नॉट, इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, 17 का तो होना चाहिए। हम्म, जस्ट मैं दिखाता हूँ, दे नेवर हैव परचेस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट इन देयर पीएनएल ट्रेडिंग, दे हैव सीओजीएस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या सोल्ड, जो भी रहेगा। अरे जल्दी हो, ऐसे टाइम लगेगा फिर वो, अगर एक एक पेज आने वाला होगा तो। ओके ठीक है, मैं आई विल शो यू टुमारो इन माय लेक्चर, कि खाली उतना दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ कहाँ पे भी मिल सकता है, एक सेकंड, इनके ना होम सर्विस, मोर फ्रॉम अस, इन्वेस्टर्स, ऐसे बोल के टैब रहता है। हाँ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स में बैलेंस शीट वगैरह मिलेगी आपको, एनुअल और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स।
सस्टेनेबिलिटी, अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आई विल शेयर यू, वो डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, एग्जैक्ट आईपैड पे मिलना मुश्किल है, लैपटॉप पे चेक करता मैं। ठीक है, सो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ऐसे होता है। देयर इज नो परचेस अकाउंट, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, देयर इज राइट डायरेक्टली सीओजीएस अकाउंट देखता है, क्योंकि वो आपके अकाउंट के साथ कैसे खेलते हो ये आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में, परचेस जो ट्रायल बैलेंस में, इन दोनों को एक अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम है सीओजीएस, और फिर इसको स्प्लिट किया, क्लोजिंग स्टॉक अलग रख दिया, एंड रिमेनिंग, सो क्लोजिंग स्टॉक असेट में जाएगा और रिमेनिंग ट्रेडिंग में आएगा, ऐसे। बस नहीं समझा तो भी चलता है, इतना कुछ नहीं, बस मुझे एक बार दिखाना था कि एक्चुअल में हम करते कैसे हैं, ठीक है। ठीक है, I didn't get how we will pass entries in the journal proper when they are debited, one when they are credited. I didn't get वो, मुझे उस क्वेश्चन नहीं समझा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू। मैथ्स होगा आपका आफ्टरनून में।